Hello everyone, welcome to MB Fitness and welcome to the very first episode of MB Talks. And our today's guest is one of the youngest singing sensation of India. She has participated in various musical TV shows like Indian Idol Junior, Rising Stars, Nale Pe Dehla, Maa Ki Mahima Parampar and Maa Ka Danka Bajakar. She was also awarded as the best singer in Uttar Pradesh and she is Arya Nandani. In this podcast, Arya has talked about the power of visualization, meditation, her perspective to spirituality, and her hard work and dedication which has brought her to where she is right now. So guys, watch the video till the end and soak in all the knowledge and information from this video and give your life a perspective. And please ignore the sound problems initially in this video as it has been recorded through Instagram Live. So if you guys are ready, then let's get started. Hi. Hi, Senior. How are you? I'm fine. How's you? I'm good too, thank you. So, how's the lockdown going on? Very amazing and having a good time here at family, with family. Yeah. आपका कैमरा थोड़ा नीचे करिए, आपका सर नहीं दिख रहा। यार वही चेक कर रहा था, मालूम है पहले। अब ठीक है? Perfect. Yep. So, यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, सही बता रहा हूँ। अरे, chill. There's nothing to be nervous about. वो भी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, oh my God. नहीं, कुछ भी नहीं है, बस normal इंसान हूँ. And I'm glad to be here with all. It's an honor to talk to you, like right now. It's really Glad. Thank you. So, सबसे पहली बात, see, I was very curious about ये जानने के लिए that see, before taking out the promotions, I went through your social media platforms like Facebook, Instagram, and all, and I saw that you have 2 million followers in Facebook. Yeah. I think your account is verified, right? Yeah. So how does it feel to have so many fans and followers in such a young age? Actually, obviously you feel amazing. It is something you feel, I think you feel that you're on cloud 9. But मुझे एक काफी छोटी एज में एक रिकॉग्निशन मिल गया था, तो मेरे कभी वो सर में नहीं चढ़ा कि I'm a star or I'm a celebrity. There was nothing like that. I've always been very normal with it because मेरा शुरू से ये चीज रहा है कि मतलब people used to recognize me wherever I used to go. So it's been very normal for me, but yet I'm very grateful for the things, and I'm grateful every single day I wake up, and it's an amazing feeling, obviously. Lovely, amazing. So इससे क्या आपके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ता है कि इतने फैंस है, फॉलोअर हैं, तो like in personal life or professional life? हाँ, I think मैं कोई भी चीज करूँ पर मेरी आवाज लौट के आ रही है ना, I think there's some issue sound का. Hello, yeah. I mean मैं जो बोल रही हूँ वो लौट करके आ रहा है. Anyway, coming back to your question, मैं कोई भी काम करूँ, obviously मेरी personal life उतनी personal नहीं है और लोगों जैसे, because everybody is keeping an eye over me, on me. तो वो चीज बहुत ऐसे होके करना पड़ता है कि people are going to watch over things, कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि अरे ये अभी आर्या ने किया, तो ये इसने ऐसे किया. People are going to judge you no matter what. Yeah. राइट. सो थोड़ा एक चीज दिमाग में होती है कि आपको कोई भी चीज करनी है तो सावधानी से करनी है, सबको नजर में रख करके करनी है, मर्यादा में रह करके करनी है, तो वो चीजें होती हैं दिमाग में. बाकी ऐसा कुछ नर्वसनेस या कुछ डर नहीं है. आई एम लिविंग ए नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. सो या. Lovely. See, I remember an incident. It was 15th of August 2011 and हम अपना मार्च पास्ट वगैरह खत्म करके ग्राउंड में बैठे थे. No, we were standing and suddenly I think it was your performance and you were singing Mera Karma Tu and Mera Dharma Tu, that song, and we were like, oh my God, what was that? मतलब goosebumps आ गए यार. मतलब
उसी टाइम लगा कि या द नेक्स्ट बिग थिंग इज हियर। अरे थैंक यू, दैट वाज एवरीथिंग। थैंक यू। वो फीलिंग अलग ही थी स्कूल में ग्रुप परफॉर्मेंसेस करते करते फिर धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस पर जाना, और बीइंग अ सीनियर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और थैंक यू सो मच। हमेशा इंकरेजमेंट मिलता था, सारे सीनियर्स आकर के बोलते थे अरे बाबू तुम अच्छा कर रही हो, ऐसे करते रहो। तो अच्छा लगता था बहुत जी। सो अच्छा देखो, जब आपके इतने फैंस एंड फॉलोअर्स हैं सी, तो सेलिब्रिटी को स्पेशली इंडिया में मान लो अगर 1000 अगर पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, अगर उनको प्यार मिल रहा है, तो उनको उसमें 100 आपको नेगेटिव कमेंट्स भी मिलती है, नेगेटिविटी भी मिलती है। सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? सिंपल, इग्नोर देम। अरे बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल। देखो ये वही बात है ना कि अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो छींट आपके ऊपर पड़ेगी, जस्ट इग्नोर दैट। या ये पॉडकास्ट, ये लाइव वीडियो का एक ही पर्सपेक्टिव था कि एवरीवन नोज द सेलिब्रिटी आर्या नंदिनी, द सिंगर आर्या नंदिनी, बट नो वन नोज the Arya Nandini who did so much hard work and dedication to get over here where she is right now. So please tell something about your dedication and hard work which you did. Obviously कुछ भी डेडिकेशन, हार्ड वर्क और यू नो अपना जो जुनून है आपके अंदर वो लगाए बिना नहीं मिल सकता है। एज अ पर्सन आई एम वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी स्टबन, बिकॉज मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। It's like मैं कोई चीज बीच में नहीं छोड़ सकती। If I want it, I will get it. And छोटे से ही मेरे दिमाग में था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि मैं हमेशा से गाती थी, तो मेरे दिमाग में था मैं तो सिंगर हूँ ही। You know, there's nothing कि मुझे अलग से कुछ efforts डालने पड़े। मतलब visualization. So Yeah, you believe in visualization? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। जब तक आपने कुछ इमेजिन नहीं किया है, कोई ग्राफ दिमाग में नहीं बनाया हुआ है, या किसी भी चीज को पिक्चराइज नहीं किया हुआ है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैंने अभी एक बुक में पढ़ा, इट वाज रिटन बाय रॉबिन शर्मा, इट वाज मेगा लिविंग, एंड इट वाज रिटन दैट we live a thing, like we live a moment twice in our life, once in our imagination and once in real life. True that. Yes. तो पहले जब तक वही होता है कि जब तक अपन दिमाग में जैसे घर बनाना है, अगर अपन दिमाग में अगर मैप प्लान नहीं किया तो घर तो कुछ भी बन जाएगा। एक बार होता नहीं भाई, हाँ ये बेडरूम, हाँ ये किचन, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। Exactly. सी देखो, एक और क्वेश्चन है मेरे को कि कभी ना कभी किसी ना किसी के लाइफ में, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी नॉर्मल इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक बुरा फेज आता है, ठीक है, जब मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ दूं, ठीक है, नहीं यार नहीं हो पा रहा है, आज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा फेज कभी आपकी लाइफ में आया? ये एक फेज नहीं बोलूंगी मैं, बीइंग एन आर्टिस्ट ये रोज होता है हर एक आर्टिस्ट के साथ, कि एक यू नो टाइम के बाद आप सोचते हो कि अरे ये छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, अब बहुत दिमाग खराब कर लिया इसमें, अब नॉर्मल लाइफ जीते हैं जैसे सारे लोग जी रहे हैं। पर फिर वो आर्टिस्ट वाला दिमाग चाहता है कि नहीं, वापस से लगते हैं, वही मेहनत करते हैं, वही चीज चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट या कोई भी इंसान जिस चीज के लिए काम कर रहा है वो उसका भूखा है, उसको वो चीज चाहिए। तो आई थिंक ये एक तरह से थोड़ा लो फील करता है इंसान, थोड़े टाइम के बाद कोप अप कर लेता है, जिसका यू नो अंदर, जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके साथ कोप अप करने के लिए। तो अगर आप छोड़ देते हो कि अरे नहीं हो रहा है, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो चीज नहीं करने देना चाहिए। हमेशा बी पॉजिटिव एंड think happy thoughts. That's going to help you at the end of the day. Positivity is everything. Exactly. So now I want to ask you about spirituality. So what is your perspective towards spirituality? It's very simple. It depends upon person to person. And for me, it's not like कि ढोम किया या पूजा पाठ कर लिया, that's spirituality. It's not like that. For me, it's something very personal, very it's something very individual. जो आप अपने आप में सोचते हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सब स्पिरिचुअलिटी है, because it needs concentration. Meditation is spirituality. मैं रियाज करती हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी है। आप ध्यान only that आप मेडिटेट करते हो या नहीं करते हो, like to calm yourself down. I was about to ask you that only. Yeah. About meditation. I don't exactly meditate. It's like at times I meditate, पर मैं ध्यान जरूर लगाती हूँ। और I think रियाज करना एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि म्यूजिक को एक बहुत बड़ा हीलर कहा गया है।
तो मैं सुबह और शाम को रियाज करती हूँ जी। Perfect. So, yeah, one more question. How do you keep yourself calm and focused when things don't go in your way? This is very nice question, I think. Actually, I'm a person की मेरे अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं होती हैं तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी स्टबर्न। आई हैव बीन वेरी पैम्पर्ड, ओवर पैम्पर्ड किड की मतलब मुझे हर चीज मेरे मुंह खोलने से पहले मिल जाती है। तो इट्स लाइक समथिंग डज नॉट लाइज ऑन प्लेस एंड लाइक आई गेट इरिटेटेड एज यू नो हेल्प। तो थोड़ा टाइम देती हूँ मैं अपने आप को शांत होने के लिए, फिर मैं कट ऑफ हो जाती हूँ सब किसी से, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है तो ऑब्वियसली गुस्से में इंसान गलत ही करता है। तो मैं साइड हो लेती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मेरा दिमाग शांत हो जाता है, जब सोचने की स्थिति में होता है कि नहीं अब कुछ डिसीजन मेकिंग हो सकती है सही पथ पर, तो फिर मैं अपना कुछ भी डिसाइड करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ शांत होने के बाद। पड़ेगा तुमसे क्योंकि लिटरली जब हिलता है तो पूरा हिल जाता दिमाग। वो हर किसी के साथ होता है, इट्स परफेक्टली ह्यूमन। या एंड इसी जब आप कोई परफॉर्मेंस के लिए जाते हो, ठीक है, कोई भी परफॉर्मेंस है, बड़ा परफॉर्मेंस है, तो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली? मेरे दिमाग में तो मैं हमेशा परफॉर्म ही कर रही होती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा एग्जैक्टली मैं रात को तो ड्रीम करती हूँ। आई एम अ डे ड्रीमर टू। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में पता नहीं कितने हजार थॉट्स आते हैं दिमाग में। इट्स लाइक मैं ना हर समय, मुझे सपने भी ऐसे आते हैं कि मैं शोज करके निकली, अभी मैंने इस जगह पे शो किया और मैं अपने ऑडियंस के साथ सराउंडेड हूँ। तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं हुआ। स्टेज पे जाने से पहले भी मेरे दिमाग में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट्स जस्ट दैट मेरा म्यूजिक सामने वाले के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो इमोशंस कनेक्ट होने चाहिए, सिर्फ वो चीज होती है मेरे दिमाग में। बाकी कुछ भी नर्वसनेस या कोई भी अलग सा लोड मैं लेकर के नहीं चलती हूँ। Same विराट कोहली ने भी कहा था that whenever he goes on any foreign tour, he used to imagine the bowler is going to face in that match, and वो imagine करता है that मैं उसे चौके छक्के मार रहा हूँ, and then वो ultimately वही reality में convert हो जाता है। तो लोग यही सोचते हैं भाई, बहुत लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई तू मत सोच उतना, तू आगे का मत सोच, वहां मत सोच, live in the present. Living in the present is another thing, ठीक है? सोचना, विजुअलाइज करना, इट्स फार डिफरेंट दैन दैट लिविंग इन प्रेजेंट, ठीक है? लोग बोलते हैं तू भाई आगे का सोचो, बहुत उड़ने लगता है हवा में, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं। तो so you have started singing at the age of like professional singing in the age of 6, na? I think 6, yeah. 6. कैसे को यार? I don't know, it was forever inside me, मतलब वो डिफॉल्ट प्रोग्राम था मेरे अंदर। Yeah. So, see, अभी आपका करियर बहुत ज़्यादा young है. You are just 19, ना? 19 right now. Yeah. So, where do you see your career after 5 years from now? Doing playback in Bollywood or performing like a rock star somewhere on the planet? You are a rock star. Thank you. So, see, we all are really, really proud of you. Where you are right now, really it's an honor. Like यार महसूस, जब मेरे मम्मी पापा आपको जब टीवी में देखते हैं ना, तो बोलते हैं सीख। नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सर का भी हमेशा से बहुत एनकरेजमेंट मिला। वो बोलने की बात नहीं है, हमेशा स्कूल में भी जब थी तो पुराण सर ने बहुत प्यार किया और बहुत एनकरेज किया कि बच्चा तुम अच्छा कर रहे हो। तो वो बहुत एक बच्चे को बिल्ड करता है अंदर से। तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आप किसी को एनकरेज करो जो उस जगह पर है। तो आप लोगों ने वो रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड आपका टैलेंट बेहतरीन था कि वो सपोर्ट अपने आप आ जाता है। मतलब कोई सामने इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क, मतलब उस चीज में लगा हुआ दिन रात, तो सामने से ही सपोर्ट अपने आप ही आ जाता है। मैंने देखा सारे टीचर मतलब आ रहे को देखो, आर्य से सीखो, ये सीखो, सही है। So now I would ask you 3 rapid round. Now it will be a rapid round.
rapid fire. I'm very bad at it, I'm telling you. Oh, take your time. Okay. So, which singer in the industry you idolize the most? Lata ji. Can you sing a song? Lata ji? Yes. Sure. Yeah. हमको मिले है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। Thank you. Man, amazing, yeah, amazing. Hats off, literally. So, my next question is, who has been your greatest motivation in your life? My father. I knew the answer, you know. I knew that answer. My father. Yeah. So he's very, he's very patient. At the same time, he has that junoon, that passion for anything. मतलब दिन रात किसी चीज में भिड़े रहना. I think ये बहुत कम लोगों में होता है. 1000 में से 1 लोगों में से होता है जो खुद को बिल्कुल they are just grinding themselves कि वो दिन रात उस चीज में लगे हैं. क्योंकि आप इंसान हो, at the end of the day आप थक जाते हो. But for him, it's not there in his case. He's like always doing it. Yeah, he cannot sit straight. He is just working and working. He gives his 100%. Yeah, we have seen that. Yeah. So, कुछ comments भी आ रहे हैं. सबको thank you बोलते हैं हम लोग. Thank you for all the appreciation. We are all proud of you. Wish you best in luck, Putra. Yo. Thank you, uncle. Ansh, thank you so much. Arvind ji, hello. सभी को hello, सभी को hi, नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद. So, thanks, Arya. Wish you a very, very, very best of luck for your future. Thank you so much. And hope that क्या यार hope क्या है, तुम तो वही hope क्या करना. नहीं, मुझे चाहिए सबकी blessings और सबका प्यार चाहिए. सब है. I hope सब लोग जी. So all the best for your future. Thank you so much. Thank you for having me. So that was the video, guys. I hope you gained some knowledge and positivity from this video. And if you like the video, do give it a thumbs up, share with your friends and subscribe to the channel. And don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I upload any new video. So see you in the next video. Till then, over and